Hello, good morning, friends. I am M. Jadov, PGT Physics, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Nanded. Now, friends, in today's class, we are going to discuss the second lesson, that is units and measurements. Now, in this topic, we have to discuss about the subtopic, that is SI system and fundamental units. Units, the concept of unit, the fundamental quantity, and then fundamental units. Now actually, as the name of topic is, the main topic is units and measurement. So here we have to discuss why there is the necessity of units, why there is the necessity of measurement. Now already we have seen in the last period the concept of physics. We have seen the introduction about our subject. Now if I consider, generally we say that physical quantity. There are physical quantity, जैसा कि हम कहते हैं कि distance is a physical quantity, displacement is a physical quantity, velocity is physical quantity, mass, length, time. Okay. Now what is the meaning of physical quantities? The first thing we have to know about the physical quantity. The physical quantities are those quantities which can be measured. The quantities which can be measured, that is known as physical quantity. यदि कोई quantity है, जैसा कि mass है, तो we have to measure it. We can measure it, बराबर नहीं? जैसा कि वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं. जैसा कि आपको कहा कि कलर है, उसको हमको नाप नहीं सकते, मतलब दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. वॉल्यूम, एरिया, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटीज, है कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. यदि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यदि कहा है, दैट मीन्स देयर इज द नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट. एंड व्हेन देयर इज द नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट, we require something to measure it. यदि मेजरमेंट की नेसेसिटी है तो हमको मेजरमेंट करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी, और जो कुछ भी हमको चाहिए फॉर द मेजरमेंट, दैट इज नथिंग बट दैट इज द यूनिट. ओके, दस द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज यूनिट एंड मेजरमेंट. तो इन दिस टॉपिक हियर वी हैव टू डिस्कस एज ए सब टॉपिक SI system and the fundamental units, fundamental quantities. Okay, so here we will discuss one by one now in detail. Now, the points to be discussed in today's class. The first point we will be discussing about unit, the concept, the very important, the basic concept of unit of physical quantity. Second, we have to discuss about the international system of units, जिसको हम SI system कहते हैं, international system of units. And third, we have to study, that is the fundamental units. Third point, we have to discuss about the fundamental units. Now, one by one we will discuss now. Now the first we have to discuss about the unit of physical quantity. Okay, unit of physical quantity. अभी आपने देखा होगा कि हमारे गांव में हमेशा जो हमारे घर में कुछ ग्रेन्स या बहुत सारी चीज़ें हम नापते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ अलग अलग यूनिट्स हैं. जैसा कि आपको पता होगा कि लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ गांव में हम यूनिट्स यूज़ करते हैं. कोई हाथ से नापता है, तो कोई पैर से नापता है, तो कोई या उंगलियों से नापता है, लाइक दिस. या जब हम खेलते समय यदि हमको कुछ डिस्टेंस नापना है, कुछ करना है, तो हम कोई भी एक ऐसी लकड़ी लेते हैं और उससे डिस्टेंस नापते हैं. तो ये जो कुछ भी है, जैसा कि हम हाथ से नाप रहे हैं, हाथ या पैर या कोई लकड़ी, क्या है, ये कुछ ना कुछ हमें इसका एक रेफरेंस, इट इज जस्ट यूज एज ए रेफरेंस, बराबर कि नहीं? जैसा कि आपको कहा कि ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है, ऐसा कह दिया, तो ये मतलब क्या, कोई कितना भी लेगा. यदि आपको उसको बराबर बांटना है, नापना है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमको उस नापने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड, कुछ ना कुछ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी. और वो जो रेफरेंस है, वो स्टैंडर्ड है, वही जो है ना स्टैंडर्ड, दैट इज नथिंग बट दैट इज द यूनिट. ठीक है, तो सिस्टमैटिकली नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज द यूनिट. यूनिट की हम अभी डेफिनेशन देखेंगे. नाउ unit of physical quantity is defined like this. Now, a certain basic, arbitrarily chosen, internationally accepted reference standard called as a unit. It should be a very basic, arbitrarily chosen. कोई भी, जैसे कि आज हम 1 मीटर, हमको डिस्टेंस मालूम है, जो मीटर पट्टी होती है ना, 1 मीटर, कपड़े की दुकान में आपने देखे होगी या टेप में हम देखते हैं 1 मीटर. तो वो जो है, आप वो जब उसको सिलेक्ट किया, तो आज हमको उसको मानना है, क्योंकि वो आर्बिट्ररली चोजन है. उस टाइम यदि उसकी लेंथ यदि कोई अलग रहती और उसको यदि 1 मीटर माना होता, तो आज भी हमको उसको 1 मीटर मानना पड़ता, क्योंकि सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ता है, मतलब वी हैव टू चूज
इसलिए, और लेकिन वो बहुत बेसिक होना चाहिए, तो सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वो पूरा का पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। रेफरेंस स्टैंडर्ड, वो एक प्रकार का रेफरेंस है ना, मतलब नापने के लिए हम किसी ना किसी प्रकार का एक आधार कंसिडर करते हैं। जैसा कि हमने एक पट्टी ले ली, उस पट्टी को हम रेफरेंस कंसिडर करते हैं और कंसिडर करते हैं कि सारे के सारे मेजरमेंट अभी उस पट्टी से होने चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो इट नाउ एक्ट्स एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। लेकिन पर्टिकुलरली व्हेन वी हैव टू डिफाइन अ यूनिट, तो यूनिट की डेफिनेशन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ये सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड एज द यूनिट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब यदि आज हम कहते हैं कि, जैसा कि हमने बहुत बार सुना होगा कि SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो मीटर है तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री कहाँ भी होगी तो मीटर जो है ये होगा SI यूनिट। कोई भी लेंथ यदि मेजर करेंगे तो उसके लिए जो एक यूनिट यूज किया जाएगा दैट विल बी मीटर, क्योंकि इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में यूनिट्स लेंथ के लिए दूसरा यूज कर रहे हैं, इंडिया में दूसरा यूज कर रहे हैं, श्रीलंका में अलग है, यूरोप में उधर अलग है, ऐसा नहीं है। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, बराबर है कि नहीं। देन ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, इट इज कॉल्ड एज द यूनिट, ओके। एंड देयरफॉर जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस टॉपिक में, दैट मीन्स यदि फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी का हमको मेजरमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जिन क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, बराबर है कि नहीं। और यदि मेजरमेंट करना है तो हमको किसी ना किसी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। वो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द यूनिट, उसकी स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी ये है वो आर्बिट्ररी चोजन चाहिए, कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चाहिए और कुछ बेसिक चाहिए, बराबर है कि नहीं, ऐसी बेसिक थिंग चाहिए। दैट रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड द यूनिट, ओके। नाउ the result of measurement of any physical quantity is expressed by number followed by the unit। बहुत बार आपने देखा होगा कि यूनिट का कितना महत्व होता है। जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आप लोग आंसर लिखते हैं और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आप लिखते हैं 10। सिर्फ यदि 10 यदि लिखा तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। आपने यदि सिर्फ 10 लिखा तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 10 इज सिंपली नंबर, ये नंबर है 10। लेकिन जैसे ही आप उसको 10 सेंटीमीटर लिखते हैं, नाउ इट बिकम्स फिजिकल क्वांटिटी 10 सेंटीमीटर। जैसे ही उसके सामने सेंटीमीटर आ गया मतलब अभी वो 10 सेंटीमीटर हो गए, मतलब आपको पता चल गया कि ये लेंथ है। यदि आपने 10 मीटर लिखा तो आपको पता गया ये लेंथ है कि नहीं। यदि आपने कोई एक चीज़ है वहाँ पे 10 न्यूटन लिखा तो आपको पता चलेगा ये तो फोर्स है। 10 जूल लिखा, अरे ये तो वर्क है, ये एनर्जी है, मालूम है कि नहीं। तो जब तक हम उसको यूनिट नहीं लिखते तब तक फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिट। और इसलिए जब भी आंसर लिखना है ना तो आंसर के साथ यूनिट होना ही चाहिए। यदि आप सिंपल नंबर लिख रहे हैं दैट इज सिंपली द नंबर। और इसलिए हमें हमेशा हमको पूरे मार्क इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप यूनिट नहीं लिखते, इसलिए दैट विल नॉट ए कंप्लीट आंसर बिकॉज इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। और इसीलिए लिखा है कि रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस बाय नंबर फॉलोड बाय यूनिट। नंबर के साथ यूनिट होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल दिया है कि लेंथ L इज इक्वल टू 10 मीटर, बराबर कि नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, वो लेंथ मेजर की उसका मेजरमेंट हमको नोट डाउन करना लिखना है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं L इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये जो 10 क्या है वो नंबर है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। 10 इज ए नंबर नाउ। उसके साथ क्या लिखना है चाहिए हमको यम लिखना चाहिए। व्हाट इज यम? यम इज द मीटर। देयरफॉर ए नंबर फॉलोड बाय द यूनिट, ए नंबर फॉलोड बाय द यूनिट। नाउ दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि लेंथ के लिए हमने ये लिया है, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली जैसे दूसरी क्वांटिटी रेजिस्टेंस है, 10 क्लास में हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 60 ओहम। तो ये जो 60 है, ये 60 उसकी वैल्यू है, सिंपल क्या है नंबर है। उसके साथ में हमें क्या लिखा है यहाँ पे ओहम, ये ओहम का सिंबल है कि नहीं 60 ओम। अब ये 60 ओम, जैसे 60 ओम कहेंगे तुरंत हमको पता चल जाएगा अरे इट इज द रेजिस्टेंस। और आपने किसी को कहा 60 है, आप बोलेंगे 60 क्या है, 60 है मतलब क्या है, लेकिन 60 ओम कहा तो पता चला अरे ये तो रेजिस्टेंस है बिकॉज ए नंबर फॉलोड बाय द यूनिट। देयरफॉर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द measurement of any physical quantity, okay। now there are different type of a systems of units। तो आपने पढ़ा होगा, लोअर कक्षा में भी कभी कभी बताया जाता है। तो देर आर डिफरेंट सिस्टम, उसमें से जो पहली सिस्टम है दीज आर कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें से पहली सिस्टम है दैट इज CGS सिस्टम। अब ये CGS सिस्टम क्या है? जनरली
ये जो सिस्टम फॉर्म हो गए, जैसे कि CGS है, उसके बाद में हम FPS देखेंगे, उसके बाद MKS देखेंगे, तो इसमें सिर्फ 3 ही बेसिक क्वांटिटी का जिक्र किया गया है। 3 बेसिक क्वांटिटी है, उसमें से एक है लेंथ, दूसरी है मास और तीसरा है टाइम। LMT से जनरली डिनोट। ये इसीलिए क्योंकि ये जो लेंथ, मास और टाइम, ये जो 3 क्वांटिटी है, दीज आर वेरी वेरी बेसिक क्वांटिटी। ये 3 बहुत बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद में और 4 क्वांटिटी आ गई है, टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसमें से लेंथ, मास और टाइम ये बहुत बेसिक है। उसके बाद में बहुत गैप गए और उसके बाद में 4 क्वांटिटी न्यू बाद में आ गई। और इसलिए जनरली जब वो सिस्टम को जब डिसाइड किया गया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसमें CGS, MKS अकॉर्डिंगली लेंथ, मास, लेंथ को किस में नापते हैं, मास को किस में नापते हैं, टाइम को किस में नापते हैं, इसके अनुसार उसके नाम हो गए CGS, MKS, FPS। ठीक है, तो जनरली इन CGS सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। C जो है ना, ये सेंटीमीटर के लिए, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, ये जो G है, कैपिटल G, इट इज फॉर ग्राम, मास इज मेजर्ड इन ग्राम। एंड जो S है, ये टाइम का मेजरमेंट के लिए, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। देयरफॉर CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर किसका यूनिट हो गया? यदि लेंथ सेंटीमीटर में नापी गई, यदि मास ग्राम में नापा गया और यदि टाइम सेकंड में नापा गया, तो जो कुछ भी सिस्टम में यदि हमने मेजरमेंट को एक्सप्रेस किया, then we can call it as a CGS system of units. Okay, second system is there, that is FPS. Actually ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश है ना, ब्रिटेन में ज़्यादा इसको यूटिलाइज किया जाता है, या इंजीनियरिंग में भी उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो FPS तो आपको पता चल गया होगा अभी, ये पहला जो लेंथ के लिए, दूसरा मास के लिए, तीसरा टाइम के लिए। तो FPS सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है, तो फुट पाउंड सेकंड, इट इज फुट पाउंड सेकंड, दैट इज कॉल्ड द FPS सिस्टम। एंड थर्ड सिस्टम इज दैट, दिस इज वेरी जनरल, जनरली यूज करते हैं, MKS सिस्टम। आपको पता चली गया होगा कि हियर दिस M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second. Therefore in MKS system length is measured in meter, उसके बाद में मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है, तो बहुत पहले ये 3 सिस्टम थी, लेकिन अभी मॉडर्न सिस्टम आ गई। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम चलती थी, लेकिन बाद में पता चला कि पूरे यदि वर्ल्ड में यदि हमको क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए एक यूनिक यूनिट होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम अभी जो मॉडर्न डेज में हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द SI सिस्टम। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SI सिस्टम? ये SI सिस्टम कहाँ से आया, बराबर कि नहीं? एक्चुअली SI का मीनिंग है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। एक्चुअली जो लिखा है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है, दिस इज रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए स्पेलिंग भी इस प्रकार के, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, SYSTEME इंटरनेशनल। इसमें देखो मैंने रेड किया, ये यस सिस्टम में का यस और इंटरनेशनल में का आई, और दोनों मिलकर बना SI। दिस इज द मीनिंग ऑफ SI सिस्टम। जनरली हम बोलते हैं कि नहीं, व्हाट इज SI सिस्टम, व्हाट इज SI यूनिट, तो SI का अर्थ होता है सिस्टम इंटरनेशनल डाई यूनिट्स या डी यूनिट्स, बराबर कि नहीं? इंग्लिश में यदि हम उसको प्रोनाउंसिएशन कैसा करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये होगा इंग्लिश में, और फ्रेंच में रहेगा सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। देयरफॉर सिस्टम वाला S, इंटरनेशनल में I, एंड दैट इज द SI। ठीक है, अभी ये जो SI सिस्टम है, जैसा कि इसमें लेंथ, मास और टाइम हमको मेजर करना है, तो ये MKS टाइप हम यूज करेंगे। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। बट इन 3 क्वांटिटी के अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज अभी हो गई, जैसे कि मैंने बताया कि अभी टोटल 7 बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, वो एम्पियर में मेजर करते हैं, बराबर कि नहीं? तो वही क्या, एम्पियर को हम कौन सा यूनिट कहते हैं, SI यूनिट कहते हैं, बराबर है कि नहीं? तो दैट इज, तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम है जो आजकल हम उसको फॉलो करते हैं, दैट इज द SI सिस्टम। ठीक है, नाउ देयर आर नाउ 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज अभी हमको कंसिडर करना है। वन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? द क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज।
क्योंकि मास लेंथ टाइम में बहुत पहले से आई, बहुत सारे लोग जानते हैं, ये बहुत जनरल क्वांटिटी है. देयरफॉर द क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. एक्चुअली मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे दिया है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. इस फंडामेंटल का दूसरा नाम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं. वाई दीज आर कॉल्ड द बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी? क्योंकि ये क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी है. ये क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पर से डिराइव नहीं की जा सकती है. ये क्वांटिटी किसी क्वांटिटी से डिराइव नहीं की जा सकती. ये खुद ओन क्वांटिटी है, उसका अपना ओन ये एग्जिस्टेंस है, बराबर कि नहीं? और इसको यूज करके हम बाकी दूसरी क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? बट दिस क्वांटिटीज, दीज आर द वेरी बेसिक, फंडामेंटल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई these are known as the fundamental physical quantities. Okay, now second physical quantities, and these are derived physical quantity. Now as the name derived, what is the meaning of derived? derived की हुई, obtained की हुई, बराबर है कि नहीं? Now derived physical quantities are derived from fundamental physical quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जब इसको डिराइव किया जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो ओवरऑल देयर आर 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज. उसके बाद में जितनी भी बची हुई क्वांटिटीज, ऑल क्वांटिटीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटी. बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटी है. अभी हम देखेंगे, जैसे हमने क्वांटिटी के बारे में देखा, तो हर फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट होता है. देयरफॉर नाउ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उसका जो यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी उसका जो यूनिट होगा दैट इज डिराइव्ड यूनिट. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट्स. यूनिट्स कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट्स. कौन सी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे? कि यूनिट कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, एक में से कभी उसको डिराइव नहीं किया जा सकता, या फिर उसको रिजॉल्व भी नहीं किया जा सकता, उसको फोड़ा भी नहीं जा सकता अदर यूनिट्स में, क्योंकि उसका ओन एक एग्जिस्टेंस होता है, वो एक बेसिक होता है, वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है, बराबर है कि नहीं? एंड दैट इज द फंडामेंटल यूनिट्स. यूनिट कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट्स. एट द सेम टाइम हियर वी हैव टू डिफाइन डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट, यदि आपको फंडामेंटल यूनिट समझ में आएगा, डिराइव्ड यूनिट तुरंत समझ में आएगा. क्या? यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स की कॉम्बिनेशन करके जो यूनिट डिराइव्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट. ठीक है, जैसा कि द यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स. बराबर है कि नहीं? फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स से उसको कॉम्बिनेशन करके ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द बेस यूनिट. जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे. अभी स्पीड का सबको एक फार्मूला मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, नाउ इफ वी हैव टू सर्च फॉर द यूनिट ऑफ स्पीड, देन वी हैव टू सी फॉर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? दैट इज द सेकंड. देयरफॉर टोटल यूनिट बिकम मीटर पर सेकंड. ठीक है, मीटर पर सेकंड, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, मीटर पर सेकंड. नाउ generally we say that meter per second is a SI unit of speed या SI unit of velocity. अब ये मीटर पर सेकंड जो यूनिट है, कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है? दिस इज ए डिराइव्ड यूनिट बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू फंडामेंटल यूनिट्स. है कि नहीं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू फंडामेंटल यूनिट्स. कौन से? एक मीटर और सेकंड. क्योंकि मीटर जो है ये मीटर बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट जो लेंथ का यूनिट है, और ये सेकंड ये टाइम का यूनिट है कि नहीं? तो इन दोनों की जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन करने के बाद जो हमको एक कंबाइंड यूनिट मिलता है दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट. ओके, नाउ दिस इज डिराइव्ड यूनिट. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स. नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट आर द यूनिट्स एंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बार बार आपको बता दिया है कि देयर आर 7 fundamental quantities. Another name for fundamental quantities that is known as base quantities also. So there are 7 fundamental quantities. What is that? The first length, second mass, third time, fourth electric current, fifth thermodynamic temperature. Simply we can say the temperature. Next, sixth amount of substance and luminous intensity. ठीक है, तो ये हायर क्लास में पढ़ा जाता है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता है, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह. ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीज आर द 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज.
नाउ यदि फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उनके यूनिट होंगे एसआई यूनिट एंड ऑल यूनिट्स आर नाउ फंडामेंटल या बेस यूनिट. ठीक है, यूनिट का नाम दिया है तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, उसका नाम क्या है, नाम नेम इज मीटर. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. व्हाट इज द सिंबल, सिंबल इज स्मॉल एम. मीटर स्मॉल एम से डिनोट है कि नहीं. सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास. एसआई यूनिट इज किलोग्राम. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम इन एसआई. Symbolically, symbol is kg, small k, small g, kg. Time is measured in second. Time is measured in second. Symbol is small s. Now electric current is there, ampere. Now this is the name of scientist, आपको मालूम है, 10th क्लास में देखा आपने, बराबर है कि नहीं. जब एम्पियर लिखना है तो ये हमेशा स्मॉल होना चाहिए. जब भी साइंटिस्ट के नाम का यूनिट लिखते हैं तो उसका पहला लेटर नेम लिखते समय स्मॉल होना चाहिए. ओहम लिखो, एम्पियर लिखो, वोल्ट लिखो, जूल्स लिखो, टेस्ला लिखो. ठीक है, तो ऑल दिस थिंग आर देयर. ठीक है, तो एम्पियर सिंबॉलिकली कैपिटल ए. देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन. लॉर्ड केल्विन हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड देयरफॉर केल्विन is the SI unit of temperature. Symbol is capital K. Then amount of substance, Avogadro's hypothesis मालूम होनी चाहिए आपको, वहाँ से आपको पता चल जाएगा what is this amount of substance. The SI unit of this physical quantity is mole, MOLE, and symbolically it is mole, MOL. Now last physical quantity, seventh base quantity is there, that is luminous intensity. It is measured in candela. Unit is CD. Okay, तो these are the 7 physical quantities. इनके definitions दी है separately. तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 by 1. तो आप टेक्स्ट बुक रेफर करो, आपको उसको टेबल मिलेगा, उसमें उसकी डेफिनेशन दी है. आपको पता चला कि यदि 1 मीटर लेंथ है तो हाउ एक्यूरेट, व्हाट एक्चुअली 1 मीटर इज देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 किलोग्राम और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 सेकंड एंड हाउ एक्यूरेट अप्रोप्रिएट इट इज नाउ डिफाइंड. एक्चुअली 1 मीटर में कोई भी 1 मीटर मतलब कोई भी नहीं, वो किस प्रकार का होता है, तो डेफिनेशन आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा. ओके, नाउ बिसाइड दैट 7 बेस यूनिट या बेस फंडामेंटल यूनिट्स, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर देयर. 2 और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. वो एक तो है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन. सिंबॉलिकली RAD, रेडियन, रेड है कि नहीं, यूज करते उसको. और दूसरा है सॉलिड एंगल जो स्टेरेडियन है, SR, स्मॉल है स्मॉल r. ठीक है, तो ये सिंबल है. तो जनरली रेडियन हम यूज करते हैं ना, 360 रेडियन, सॉरी पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन. ये जो रेडियन है दैट इज द मेजरमेंट या SI यूनिट ऑफ ए प्लेन एंगल. तो 2 प्रकार के और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. अभी एक्चुअली प्लेन एंगल क्या है, तो सिंपली इफ आई कंसीडर दीज आर द 2 रेज, ये प्लेन है ना बिल्कुल, ये रे और ये, और दिस इज द एंगल, दिस d थीटा, दिस इज नथिंग बट ए प्लेन एंगल. नाउ दिस इज एन आर्क, ये क्या है, आर्क है. देन व्हाट इज द ds, ds विल बी द लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है एंड ds इज द लेंथ ऑफ आर्क. नाउ r इज द रेडियस. अभी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आपको पता होगा, लेंथ ऑफ आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस टाइम एंगल होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर होता है कि नहीं. एंड देयरफॉर नाउ d थीटा, यदि एंगल है तो d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r. अभी मैंने बताया लेंथ ऑफ आर्क ds इज इक्वल टू r इंटू d थीटा. देयरफॉर ये r इधर आ जाएगा तो इट बिकम्स d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस प्लेन एंगल. दिस d थीटा इज नोन एज द प्लेन एंगल. d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r. व्हाट इज ds, ds इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड व्हाट इज r, r इज द रेडियस. मतलब यदि हमको प्लेन एंगल डिफाइन करना है तो इससे हम डेफिनेशन बता सकते हैं. यस, what is that, plane angle is defined as the ratio of length of arc divided by this radius, length of arc divided by the radius, radian. ठीक है, तो this is the meaning of this plane angle. Another is there, that is the solid angle. 3D में solid angle here. Now see the figure. ये जो डेल्टा ओमेगा जो यहाँ पे दिया है, ये ओमेगा जो हम के लिए यूज करते हैं ना, दिस इज ओमेगा, डेल्टा ओमेगा जो यहाँ पे दिया है. नाउ दिस इज द एंगल, नाउ डेल्टा ओमेगा, ये सॉलिड एंगल है 3D में. तो यहाँ पे हमको 3D पिक्चर इमेजिन करना है तो सी, दिस इज ओपेक्स को कहते हैं इसको. यहाँ पे देखो, दिस इज द पोर्शन ऑफ द स्पेरिकल एरिया, सरफेस एरिया, जो स्पेरिकल ये पूरा का यहाँ पे स्फीयर इमेजिन करेंगे हम लोग, उसमें से इस प्रकार का हमने काट कंसिडर किया, बराबर है कि नहीं. नाउ दिस इज द सेक्शन एक्चुअली. ठीक है,
इट इज इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ ए स्पेरिकल सरफेस। ये पूरा का पूरा स्पेरिकल सरफेस आ जाएगा ना, उसका उतना ही इंटरसेप्टेड एरिया हमको लेना है जो यहाँ पे सेंटर के पास एंगल क्या करता है, सब दूसरा एंगल यदि हमने ले लिया, ये इतना बड़ा एंगल, तो आपको ये एरिया लेना पड़ेगा। यहाँ का एंगल यदि लिया तो हमको ये एरिया लेना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। एंड देयरफॉर दिस इज द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस डी ए एंड दिस डी ओमेगा, देन दिस डी ओमेगा इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। ये जो सेकंड क्वांटिटी इट इज सॉलिड एंगल एंड इट्स डेफिनेशन इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इट इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए का मतलब आपको यहाँ पे दिया है, इट इज इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ ए स्पेरिकल सरफेस एंड व्हाट इज आर, आर इज अगेन इज द रेडियस, इट्स स्क्वायर। मतलब हमको यदि वर्ड में उसको डिफाइन करना है तो दिस सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया, इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ ए स्पेरिकल सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ठीक है, तो टू मोर फंडामेंटल यूनिट्स आपको ध्यान में रखना है। वन इज रेडियन फॉर प्लेन एंगल, सिंबॉलिकली RAD, एंड अनदर इज स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड एंगल यहाँ पे दिया है, सिंबॉलिकली इट इज SR। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो हियर वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स इन दिस टॉपिक। Now once again we can recall the importance of the unit. What are the unit? Unit is a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard that is called as the unit. Why there is the necessity of a measurement? Because as we have to deal with the measurement of physical quantity, the physical quantity means actually the quantity which can be measured, or the quantity which can be measured means for measurement we require that reference standard. That reference standard is nothing but that is the unit. Therefore the importance of the unit is there. ठीक है, तो we have seen the concept of fundamental quantities, then derived quantity as well, fundamental units and derived units, बराबर है कि नहीं। derived units are expressed in terms of the fundamental units, और fundamental unit किसी के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक होते हैं, बराबर है कि नहीं। Now there are 7 fundamental quantities and along with there will be 7 fundamental base units. Okay, besides that there are the 2 supplementary base units. These are radian for plane angle and another steradian for solid angle. Okay, so try to clear the concept, read the book and make the note. Okay, thank you.